विल शेयर दिस विद। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आज के लिए बोलो उसको कि आज के लिए थोड़ा वेट करे, नेक्स्ट क्लास से वैसे हो जाएगा, मैथ्स में तो हो ही जाएगा, बट आई विल फिक्स दिस प्रॉब्लम टुडे। Sir, thank you, sir. ओके श्योर। सो द आंसर विल बी, बहुत लोगों ने आंसर किया है और मोस्टली सही आंसर आ रहा है और सही भी है, अच्छी बात है ये। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ कि 3 एटम्स हैं, N3 माइनस, O2 माइनस एंड F माइनस। ठीक है, 3 आयंस है, मतलब इन तीनों की साइज, इनमें से कौन सा सही करेक्ट ऑर्डर है इनकी साइज का, एटॉमिक साइज का? ऑप्शन ए 1.36, 1.40, 1.36, 1.40 एंड 1.71 एंगस्ट्रम। ऑप्शन बी है 1.36, 1.71 एंड 1.40। ऑप्शन सी है 1.40, 1.71 एंड 1.36। ऑप्शन डी है 1.71, 1.40 and 1.36। These are 4 options in angstrom, obviously in angstrom बताना है आपको इनकी रेडियाई कौन सा सही है। Radii of these ions, Anmol, I know you're not getting anything out of this class, but क्या करोगे, थोड़ी देर आपको बेयर करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप फ्लो में आओगे। सो ऑल्सो अगेन इसका भी आंसर ढूंढो आप लोग। ओके सो ओके सही है, सबका आंसर सही आ गया, वेरी गुड। अभी तक कोई भी गलत आंसर नहीं आया मुझे। वेरी गुड सक्षम, वेरी गुड तरनप्रीत, जब जाप करेक्ट, मान्यता आपका भी सही है। सो नाउ यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। सृष्टि नहीं, वापस उल्टा लिख रहे हो आप सृष्टि, आपने रिवर्स लिख दिया, वापस सोचो एक बार, है ना। यस जॉय करेक्ट है। सो एवरीबडी is able to understand that first, for the first question, these all are isoelectronic species. In fact, in second question also they are isoelectronic species. For isoelectronic species, size is affected by nuclear charge, because electronic repulsion is going to be same because they have same number of electrons even in any cell you consider. So if they have same number of electrons, so electron is not going to be something which is going to affect the size. Actually, the one which is different for those three atoms will be the something which will affect the size of those atoms or ions. So in this case, azimuthal quantum number is going to be same for a valence shell because there are same number of electrons. Electron-electron interaction in valence shell is going to be same because again there are same number of electrons. Principal quantum number is going to be same because this orbit number is same because they are isoelectronic. So the only difference is nuclear charge which is going to affect their size. So जिनने D, I think सबने D ही किया है, गलत किसी ने नहीं किया है, या तो नहीं किया है या D किया है. So that's a very good thing. सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर डी होगा। क्यों डी होगा सर? because sir these are isoelectronic species and we have studied that in case of isoelectronic species, as negative charge increases, atomic or ionic radii increases. So if negative, the one with more negative charge will be larger in size. Now all three options have same values but they are arranged in different patterns. So we'll choose one which gives nitrogen the highest value and fluorine minus the lowest value, and that's the option D. ठीक है, तो आपको ये रटना नहीं है, आपको ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, ये दिस इज डूइंग वी दिस इज based on the pattern which we observe in case of isoelectronic species. So the values which are arranged according to the pattern will be the correct ones. Clear है? तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और भी देखते हैं, ये सारे क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर एग्जाम के। और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आई विल शेयर द सीपीपी विद यू गाइस एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट।
बट आज का जो अपना टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो सिंपली मैं एक बार अगर आपको ब्रीफ कर दूं आयनाइजेशन एनर्जी का, तो आयनाइजेशन एनर्जी का सीन ऐसा है कि आयनाइजेशन एनर्जी की जो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, आयनाइजेशन एनर्जी, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप. सो आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू, क्या होगा भाई, अगर मैं पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करूं यहाँ पे, ठीक है सर, ये पीरियोडिक टेबल है आपका. पीरियोडिक टेबल में सर आप दो डायरेक्शन में जा सकते हो, इधर विल बी मूविंग डाउन द ग्रुप और along a group, or will be moving along a period. ठीक है. So ionization energy decreases down the group and increases along the period. तो जो एक्चुअल ऑर्डर होगा वो कैसा होगा सर? अगर इंक्रीज की बात करो तो आयनाइजेशन एनर्जी का अगर एरो अगर दिखाएं हम लोग, तो इस डायरेक्शन में ऐसे दिखाओ आप. आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे इंक्रीज करेगी, करेगी कि नहीं बोलो? और अगर सर आपको और अच्छे से दिखाना चाहते हो, अगर एरो इंक्रीज के डायरेक्शन में दिखाना चाहते हो, तो एरो के डायरेक्शन में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ऐसा याद रखो आप. तो ये पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं है. अगर ये अपना पीरियोडिक टेबल है, तो एरो के डायरेक्शन में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है. आप देख लो, सबके लिए वैलिड है ना? और अपार्ट फ्रॉम दैट सर, देयर आर सम एक्सेप्शंस दैट एक्सपेक्टेड एंड reality is different from expectation, which happens every time. But in case of ionization energy, there are some cases where reality is different from expectation. What we were expecting, that boron should have higher ionization energy than beryllium, and we were also expecting that oxygen should have higher ionization energy than nitrogen. But in reality क्या है? Reality is, sir, beryllium is higher in ionization energy than boron, and nitrogen has higher ionization energy than oxygen. So these are some irregularities. Now I'll give you another irregularity. Next irregularity of ionization energy comes in third group और 13th group to be exact. अगर बात करें तो वैसे 3 भी बोलते हैं उसको, but 13th group. If we talk about 13th group, we found that there is some irregularity in size. Did we find that, right? There was some irregularity in size of 13th group elements, because as we go down the group, we encounter for the first time d orbital as a shielding orbital for the outermost orbitals, right? We have seen that. हाँ या ना बोलो? Yes, sir. So if there is some irregularity in size, there must be some irregularity in ionization energy also, because size is one of the factors which decides the ionization energy. So if there is some irregularity in size, there has to be some irregularity in ionization energy as well. So that, what is that irregularity? So if we go down the group, we find that boron, aluminium, these are some elements of this group: boron, aluminium, gallium, indium, and thallium. These are some elements of this group. So from boron to aluminium, what is expectation? What do you expect? Decrease in ionization energy. So that happens, decreases. ठीक है. From aluminium to gallium, what do we expect? Decrease. Decrease. ठीक है. लेकिन होता क्या है? तो ध्यान देंगे इसको आप लोग. यहां से यहां जाएंगे तो डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी. तो डिक्रीज को मैं ऐसे दिखाता हूं एरो से, ठीक है? या फिर मैं एरो का डायरेक्शन से ही अपन कर रहे हैं. देखो आपके ऊपर है यार, आप अंडरस्टैंड कर लो, उसको लिख लो या समझ लो. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है? फिर एल्यूमिनियम से गैलियम ये होगा, ठीक है? फिर गैलियम से इंडियम, देखो याद करने का ट्रिक बता रहा हूं तुमको मैं, ये होगा. पैटर्न तो अपन समझ लेंगे क्यों ऐसा होगा. और इंडियम से फिर थैलियम ये होगा. ऐसे वेरिएशन होता है आयनाइजेशन एनर्जी में. तो सबसे ज्यादा क्या लगता है आपको इस ग्रुप में, सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा होता है बोरॉन का. Boron. उससे ज्यादा किसका होगा? बताइए. Indium. हाँ, गैलियम. गैलियम. देखो अब उसके बाद क्या होता है कि गैलियम
एक्चुअली में होता है इंडियम का ही है, बात सही बोल रहा हो। लेकिन इसको कैसे याद करोगे आप? पहले हम समझ लेते हैं, फिर देखते हैं उसको पैटर्न में कैसे अरेंज करते हैं। देखो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जैसे जाओगे एल्यूमिनियम से गैलियम, सो ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डी ऑर्बिटल द शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसे मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, तो न्यूक्लियस को एस ऑर्बिटल क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है। सो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मान लो इधर कहीं है, तो इस पे न्यूक्लियस का इफेक्ट नहीं होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, राइट। तो अगर ऊपर भी एस है नीचे भी एस है, तो कहानी बराबर है, दोनों के लिए इक्वली इजी है। लेकिन एज वी एंटर इनटू डी रीजन, सो डी ऑर्बिटल हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, मतलब वो थोड़ा स्कैटर्ड होता है, वो स्फेरिकल नहीं होता है एस ऑर्बिटल की तरफ। तो अगर उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो न्यूक्लियस जो है इधर पीछे, उसका कुछ इफेक्ट होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, इनफैक्ट ज्यादा होगा। तो अगर इफेक्ट उसका बढ़ेगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन बिकॉज न्यूक्लियस हैज नाउ मोर इफेक्ट ऑन दैट इलेक्ट्रॉन. So if it is difficult to remove that electron, it will require more energy to remove that electron. And if it requires more energy, so NS energy will be high. So when we move from aluminium to gallium, that will be the trend. Now, when we move from gallium to indium, the same orbital is going to be repeated because again we'll have d orbital. तो d d में तो कहानी बराबर होगी फिर से. लेकिन जैसे आप इंडियम से थैलियम में जाओगे तो क्या होगा, बोलो. So sir, when we'll move from indium to thallium, again insertion of f orbital will be there, and due to insertion of f orbitals, energy will suddenly increase. होगा या नहीं बताइए. Yes, sir. तो क्या करें बताइए, किसका ज्यादा होगा फिर इसके बाद. देखो ये तो आपको समझ में आ गया, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज ऐसे समझ में आ गया. इसका ट्रेंड में लिख दूं डायरेक्ट पहले, तो इससे ज्यादा होता है, फिर ज्यादा होता है थैलियम का, फिर होगा गैलियम का, फिर होगा, अच्छा एक सेकेंड, एल्यूमिनियम भी तो है, एल्यूमिनियम से तो गैलियम का ज्यादा ही होगा. थैलियम हो गया, गैलियम हो जाएगा उसके बाद, फिर एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम. ठीक है, ये है इसका आयनस एनर्जी का एक्चुअल ट्रेंड. आपका काम ये है, मैंने ट्रिक हिंट दे दिया है, बट फिर भी आपका काम है फाइंड आउट एग्जैक्ट रीजन, फाइंड आउट व्हाई. आपको एक्सप्लेन करना है. एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है ऐसा, सब्जेक्टिव में जाओगे ना तो एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, आयनस एनर्जी ट्रेंड ऑफ दिस फैमिली इज लाइक दिस, व्हाई. तो आपको ये एक्सप्लेन करना है व्हाई. मैंने बता दिया, आपको आइडिया है मोरलेस, बट फिर भी आप सोचो इसको और मुझे नेक्स्ट क्लास में आप बताओगे. सो दिस इज ऑल अबाउट आयनस एनर्जी. इट इंक्रीजेज with effective nuclear charge, it decreases with size, it increases with stability of electronic configuration. Along the period, NS energy increases, down the group NS energy decreases. In case of boron and boron family, there is some irregularity, there are some irregularities which we have covered today. In case of isoelectronic species, as positive charge increases, NS energy increases, because sir, as positive charge increases, size decreases. Or you can say, sir, as positive charge increases, effective nuclear charge increases. So effect of effect of nucleus on electron will be more. So as effective nuclear charge increases, NS energy increases. So in case of isoelectronic species with increase in positive charge, मतलब size का reverse trend कर लेना NS energy का, ऐसा याद रखो आप. ठीक है. इफ someone ask you कि फ्लोरीन माइनस और ऑक्सीजन माइनस में NS एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे सर फ्लोरीन माइनस की ज्यादा होगी, सॉरी हाँ ऑब्वियसली फ्लोरीन माइनस की ज्यादा होगी, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोरीन देन ऑक्सीजन. क्लियर है सबको? ओके देन. सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. ठीक है, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं. मुझे अब लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्लो हो गया. ठीक है, पता नहीं क्यों स्पीड ही नहीं मिल पा रही. मैं सोच रहा हूँ कल फास्ट पढ़ाऊंगा, कल फास्ट पढ़ाऊंगा, पर हो ही नहीं पा रहा है. मुझे लगता है कोई छूट ना जाए, किसी को ऐसा ना हो कि समझ ना आए, फिर वो बोलते भी नहीं हो, तो आप लोग की समझ में नहीं आ रहा है. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी, सबसे पहले तो इंथैल्पी नाम का टर्म आप पहली बार सुन रहे हो. ठीक है, आयनेशन एनर्जी को बहुत बार आयनेशन पोटेंशियल भी बताते हैं बुक्स में. तो पोटेंशियल और एनर्जी में डिफरेंस आप लोगों को पता है?
हाँ, पता है क्या? नहीं पता है, कहाँ पता है? Do you know the difference between ionization potential or any potential and any energy? What is excitation potential? Hmm? We have discussed these terms in atomic structure. Don't do this. What is ionization potential? Sir, a potential through which the electron must be accelerated to reach its excitation energy. Almost correct. So a potential difference through which an electron must be accelerated in order or so that its kinetic energy become equals to excitation energy. And I have told you that there is no difference magnitude wise in ionization energy and ionization potential. The only difference is their units. When ionization energy is expressed in electron volts, ionization potential is going to be same with unit of volt. Like if ionization energy is 12 electron volt, ionization potential will be 12 volt. Right? तो ये मैंने बताया. तो वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा या ट्रेंड सेम होगा. दे बोथ डिपेंड इन ऑन वन अनदर. ठीक है, तो उस हिसाब से आप उसको ध्यान रखोगे. Now enthalpy is a new term, although we will be discussing enthalpy in detail in chapter thermodynamics. It is part of thermodynamics. चैप्टर है अपना थर्मोडायनेमिक्स, अगर किसी ने देखा होगा तो दिखा होगा. लेकिन यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि अपने लिए इंथैल्पी का मतलब अभी ये है एनर्जी. क्या है? एनर्जी. जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है, उसका आप इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहे हैं हम लोग. लेकिन एंथैल्पी इज नॉट जस्ट एनर्जी, दैट यू अंडरस्टैंड. बट इन दिस सिनेरियो, इन दिस सिचुएशन, वी एनर्जी इज कंसिडर्ड एज एंथैल्पी. ठीक है, बहुत बार एंथैल्पी हीट की तरह भी बिहेव करता है, हीट भी होता है एंथैल्पी. तो यहाँ पे एंथैल्पी एनर्जी है. ठीक है, लेकिन क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एनीवन? ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? सर एंथैल्पी हम्म, सर लाइक इंटरनल एनर्जी एक पर्टिकुलर चीज में, इंटरनल एनर्जी. ओके, ठीक है. और कोई आंसर? जो पर्टिकुलर चीज प्रोड्यूस करती है अंदर से. लाइक नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? सर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जैसे कोई भी जो एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, न्यूट्रल कोई भी एटम होता है उसमें करने के लिए. ठीक है, किसी भी एटम में आप कह रहे हो कि सर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी क्या लगती है या रिलीज होती है? Sir, it is the energy which is released when we convert a neutral atom to an ion. ठीक है, और ये रिक्वायर्ड नहीं हो सकती? सर रिक्वायर्ड ही होती है. रिक्वायर्ड होती है, रिलीज होती है, बता दो मुझे. सर रिक्वायर्ड होती है. ओके, पर अभी तो मनकिरण ने तो बोला कि एनर्जी रिलीज्ड. Sir, कौन सा है? 10th में यही definition पढ़ा था कि it is the energy released. 10th में तो बहुत कुछ पढ़ते हैं हम लोग यार, गलत हो जाता है 10th का. नहीं, कोई बात नहीं. सी आयनाइजेशन एनर्जी तो पता है हमें कि उसमें यार एनर्जी देनी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसा है कि देखो यार, एक जो न्यूक्लियस है, देयर इज सम पोटेंशियल, देयर इज सम इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन व्हिच बिलोंग द इलेक्ट्रॉन व्हिच बिलोंग्स टू द एटम इटसेल्फ. Like if an electron belongs to fluorine, so it belongs to fluorine because nucleus is attracting that electron in fluorine, right? If there is no attraction between nucleus and electron in fluorine, then electron will be moving in random direction anywhere in the universe. So there is no there will be no concept of atom, there will be no concept of human body or anything. So the electron which is attracted with fluorine in case of fluorine atom is in influence of nucleus of fluorine atom, and to be exact, that nucleus attracts the electron. So whenever you want to remove that electron, you will need to provide some energy, at least energy equals to break that attraction. But when we talk about electron gain enthalpy, so there will be two scenarios. It might be released and it might be required.
दोनों होता है इसमें। कैसे दोनों होता है सर? ऐसा क्या? ये तो पहली बार आप कुछ नया ही लेके आ गए। अब तो हर बार आप चेंज कर देते हो स्ट्रेटेजी। मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है, दिट इज जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अगर मान लो कि सेम तरह के दो प्रोसेस करते हैं हम लोग, सेम तरह के दो प्रोसेस करने में कभी एनर्जी मिल भी सकती है और रिलीज भी हो सकती है, अगर ऐसा होता है नेचर में तो हम उसको ऐसा ही बोलेंगे। अब मैं अपनी तरफ से डेफिनेशन बनाऊंगा नहीं। सो एक्चुअली व्हाट आयनाइजेशन एनर्जी इज, हाँ, towards itself, that is electronegativity. Navleen, that is electronegativity. Okay, Okay, that sir. also we'll discuss that. So this is energy required or released. Definition will be energy required or released. We'll discuss in detail when it is required and when it is released. Don't worry about that. But it is energy required or released when an electron is added in outermost cell of an isolated gaseous atom. क्या लिखोगे? Energy required or released, energy required या released when an electron is added in outermost shell. ये भी ध्यान रखना, कहीं नहीं, of an isolated gaseous atom. ठीक है, ये डेफिनेशन ध्यान रखना, बहुत प्रिसाइज है, बहुत एग्जैक्ट है। एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा कब होगा कि कभी रिक्वायर्ड कब होगी और रिलीज कब होगी, हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि एक एटम है, देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम व्हिच आर ऑलरेडी देयर, वी आर डिस्कसिंग सम पर्टिकुलर ऑर्बिटल, द आउटरमोस्ट शेल. Now we want to bring an electron and add this electron to the outermost shell of this atom. ठीक है, वी आर ब्रिंगिंग दिस इलेक्ट्रॉन, दिस रिप्रेजेंट्स वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम अ फार अवे, और ये इलेक्ट्रॉन कभी इस एटम के इन्फ्लुएंस में नहीं था, मतलब दैट रिप्रेजेंट्स इन्फिनिटी, जो बीच में ऐसे गैप है। मतलब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि लिटरली इन्फिनिटी से लेके आएंगे, देयर इज नथिंग लाइक इन्फिनिटी, लेकिन व्हाट वी मीन टू से इज द इन्फ्लुएंस, the electron has no influence of that atom before adding the electron into that atom, right? इसका मतलब ये है। तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन लाने का सेंस आप ये समझो कि बस वो उसके इन्फ्लुएंस में नहीं था। अब मान लो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, तो यहाँ दो सिनारियो हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि जो इसका न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है ये, वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, दैट कैन बी द केस नंबर 1. And when that happens, when attraction between the nucleus and the electron which is being added to the atom happens, the energy will be released. Why? Because whenever there is an attraction, energy will be released. Why? Because attraction is between two opposite charges, and when charges are opposite, potential energy will be negative, and negative means released. Yes or no? नहीं समझ में आया तो ना बोल दो यार। रिपीट कर दो। नहीं रिपीट तो नहीं करूंगा, बोलना है कि नहीं समझ में आया तो ही रिपीट करूंगा मैं। नहीं समझ में आया बिल्कुल, हाँ अब मैं वापस समझाता हूँ। एक एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का काम है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन्स का काम है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना। समझ में आ रही है बात? और इसको कैसे समझेंगे? कुछ भी एग्जांपल ले लो। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड है, उसका काम है नए एम्प्लॉयज को हायर करना। बाकी जो लोग हैं वो चाहते नहीं कि कोई टैलेंटेड आदमी वहां पे काम करे, तो वो क्या करेंगे? वो उसको रिपेल करेंगे, मतलब उसको अपोज करेंगे। या लेट्स से in any organization, you are not of that age, but you will feel later on when you will grow up and when you will join some organization, and you will feel that you have some talent, you have very good talent to do some set of jobs, and then you have ideas as well. The company wants that, but the people around you, they don't want you to be in the limelight, or they don't want you to grow, so they will oppose you, or they will try to do something so that you can be brought down. So the thing is, same goes for the electron. I'm trying every day to make you understand that electron and atom is just like us. You can relate it with us, and then you can do the calculation or understand any particular concept. So
electron when comes to orbital or any particular orbit, it is attracted by the nucleus but repelled by the other electrons. So if attraction of nucleus is more on electron, then energy will be released more than that. What? More than repulsion of electrons on that same electron. ठीक है, मैं नहीं समझ में आया तो वापस समझाता हूं मैं. न्यूक्लियस कहेगा इधर आओ, पास आओ. इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे नहीं, दूर जाओ. अब इनमें जिसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा उस हिसाब से बात बनेगी. तो और हम हैं जो इसे काम कर रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कह रहा है इलेक्ट्रॉन को कि तुम मेरे पास मत आओ, न्यूक्लियस कह रहा है कि तुम आ जाओ, और हम कह रहे हैं कि नहीं हम ऐड करेंगे, हम कह रहे हैं कि नहीं हमें तो ऐड करना ही है इलेक्ट्रॉन. तो अगर न्यूक्लियस की बात ज्यादा डोमिनेटिंग हुई तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इनफैक्ट हमें एनर्जी मिल जाएगी. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस अपने आप खींच लेगा. और अगर इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेटिंग हो गए और फिर भी हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना है एक और, तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन से और एक्स्ट्रा पुश देंगे ताकि वो अंदर चला जाए. एंड दैट पुश इज एनर्जी रिक्वायर्ड. क्या ये बात अब समझ में आई आप लोगों को? यस सर. Yes, sir. So when influence of nucleus is more on the electron being added, then energy will be released. And when influence of electrons in outer shell or in the atom, whole atom, is more on the electron being added, then energy will be required. ठीक है, क्लियर है ये बात? तो लिख लो इसको. क्या लिखोगे कि when influence of electron, when influence of nucleus is more on the electron being added, ठीक है, then energy will be क्या होगा? सही है, released. और कभी कभी आप लोगों को मैं बता दूं, मेरी स्पेलिंग पे ध्यान मत देना. बहुत बार होता है कि मैं सोचता कहीं आगे हूं और लिखता पहले हूं, बाद में हूं, तो कुछ ए ई इधर और सी उधर, ए इधर ई सब होता रहता है. तो आप उसको, आप लोगों को तो आती होगी इंग्लिश तो आप कर लोगे, मुझे पता है, मुझे भी आती है, ऐसे डाउट मत करना, बट मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ ऐसे. हाँ, नाउ सो व्हेन इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर देयर इन एटम is more on the electron being added, then energy will be required. ठीक है, तो मनकिरण आपने गलत पढ़ा था या सही पढ़ा था? सर रिलीज भी होती है और रिक्वायर भी होती है. तो बोलोगे सर it मैंने was गलत like- नहीं पढ़ा था, मैंने लिमिटेड पढ़ा था जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी उस टाइम पे. So Yes, when sir. influence of electrons present in atom is more on electron being added, then energy will be required. किस काम के लिए एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होगी? निदिता बताओ, एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होगी? टू डू व्हाट? निदिता चाय पकौड़े खाने चली गई क्या? लो, तुम लोग क्लास में रह गए, निदिता गई घर. कौन बताएगा फिर? अनीशा तुम बताओ. सर वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए. ऐड करने के लिए, हाँ, होल्ड करने के लिए. रिक्वायर्ड टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है,
यार मेरा वर्चुअल बैकग्राउंड बंद हो गया यार, ऐसे कैसे हो गया? कोई नहीं. So this is the scene now. Periodic variation, आपको पता है कि सर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अलोंग द पीरियड जाएंगे, साइज घटेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी या घटेगी बताओ अलोंग द पीरियड? इंक्रीज होगी. बहुत आसान है, इसीलिए मैंने बोला कि एक बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ लो, सारी कहानी आसान हो जाएगी. तो सर इफ यू गो अलोंग द पीरियड, effective nuclear charge increases, so electron gain enthalpy will increase, means released energy will increase. इसीलिए क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो टर्म है उसको रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से. और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. सो टुडे वी हैव जस्ट हैव an introduction of electron gain enthalpy. The detailed application and trend in periodic table will be discussed in next class, which is tomorrow. We'll try hard to complete this chapter by end of this week, because if we don't do that, we are lagging so behind that we have to arrange some extra classes of 1 hour or 1.5 hour in the evening to complete the syllabus. So please आप लोग भी थोड़ा पढ़ के आओ ताकि मेरे लिए आसान हो जाए. और तो क्या, बस इतना ही है. Thank you very much. See you tomorrow. If you have doubts, again, you know what to do. Thank you. Yes, Aryan. Thank you. Thank you. Aryan, कोई डाउट है? यस सर. हाँ. सर मेरा डाउट है कि सर जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, सर वो नेगेटिव चार्ज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सर, पर वो अक्रॉस अ पीरियड हमेशा इंक्रीज ही करती है सर. जैसे अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं सर, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोल रहे हो? नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. यस सर. सही बात है. हाँ सर और अलोंग अ पीरियड सर वो हमेशा इंक्रीज ही करती है. हाँ. सर तो अलोंग अ पीरियड भी तो सर नेगेटिव चार्ज बढ़ ही जाता है. कैसे? मुझे तो लगता है कि अलोंग द पीरियड तो न्यूट्रल होता है एटम हर जगह ही. आर्यन समझो, उस कॉन्सेप्ट को समझो. नेगेटिव और पॉजिटिव तो मैंने लास्ट में उसको कंक्लूजन के बाद बोलना शुरू किया. उससे पहले मैंने कुछ समझाया था, याद है कि नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या है और पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है. ऐसे उसको रटो मत. अगर रटना ही होता तो मैं डायरेक्टली लिखवा देता ना यार कि फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो होगा. मैंने इतना टाइम क्यों लिया उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट करके समझाने के लिए, ताकि यू नो द फंडामेंटल की ऐसा क्यों हो रहा है. तब आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते. समझ रहे हो आप बात को, कि जो चार्ज है वो डिक्रीज इंक्रीज नहीं हो रहा है अलोंग द पीरियड. एटम फ्लोरीन न्यूट्रल होता है, ऑक्सीजन न्यूट्रल होता है, फ्लोरीन माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन 2 माइनस नेगेटिव चार्ज होता है. तो अब दोनों -2 हो गया तो ऑक्सीजन चला भी तो गया एक स्टेप आगे 2 इलेक्ट्रॉन लेके. फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया अब उसमें. ऑक्सीजन 2 माइनस में, सॉरी इलेक्ट्रॉन उतने ही रहे, प्रोटॉन बराबर हो गए दोनों के. क्लियर है? तो इसमें सर थोड़ी कंफ्यूजन है. तुम एक काम करो, टेंशन मत लो, इसको बड़ी बात नहीं है. तुम इसको एक बार वापस पढ़ो जो मैंने करवाया है क्लास में, ठीक है? तुमको समझ में आ जाए खुद ही. फिर भी नहीं आया तो मैं हूँ ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा, कहीं भाग तो रहा हूँ मैं. नेक्स्ट क्लास से पूछ लेना. वैसे मैंने पूरा डिटेल में समझाया, एक एक लाइन, एक एक स्टेप करके कि क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक है, वापस एक बार पढ़ो उसको. क्लियर है? बाकी सब जनता खुश? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच. सर वर्कशीट भेजें. बिल्कुल दिशांत, श्योर. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. आई विल जस्ट सेंड इट टू यू गाइस. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. थैंक यू. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. परमिंदर पढ़ाई करो थोड़ी. थैंक यू तो ठीक है, पढ़ते नहीं हो तुम यार, पढ़ो. चलो बाय.